Hello everyone. We are starting with chapter number 19, Excretory Products and their Elimination. This is the first video, class 11th Biology. In this video, we are going to cover the following topics: excretory products and their elimination in different organisms, human excretory system, and then the steps involved in the formation of urine. Okay. Now, first of all, let us see what is excretion. It is the removal of waste material from the body like ammonia, urea, uric acid, and these are formed during various metabolic reactions taking place in the body. So, removal of waste from the body is called as excretion. There are three types of excretion based on the type of waste material excreted: ammonotelism, ureotelism, and uricotelism. First, let us see what is ammonotelism. It is the process of excretion of ammonia as a waste. और जो animals ammonia को excrete करते हैं as a waste, they are called as ammonotelic animals. कौन से हैं ammonotelic animals? Aquatic invertebrates, aquatic insects, bony fishes, and aquatic amphibians. And they live in water. All of them, they live in water. As ammonia is highly toxic, बहुत ही ज़्यादा toxic है ये, so excretion needs excess of water. बहुत पानी चाहिए इसको excrete करने के लिए. That's why this mechanism is found in aquatic organisms. Okay? Ammonia is readily soluble in water. और ये कैसे excrete होती है? By diffusion through body surface or gill surfaces as ammonium ion. Okay? अमोनियम आयन की फॉर्म में ये रिलीज हो जाती है फ्रॉम द बॉडी सरफेस और फ्रॉम द गिल सर्फेसेस. क्लियर? इसमें किडनी का कोई रोल नहीं है. किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यूरियोटेलिज्म. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी. और जो एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दे आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक एनिमल्स. कौन से हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स? देखिए, कार्टिलेजिनस फिशेस, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स, एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स लाइक एलिगेटर्स एंड टर्टल्स, एंड ऑल्सो मैमल्स. दे एक्सक्रीट यूरिया फ्रॉम देयर बॉडी. व्हाट हैपन्स इन देयर बॉडी? देखिए, इनके लिवर में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया एंड इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन. थोड़ा सा पानी चाहिए इसको एक्सक्रीट होने के लिए. एंड मोर ओवर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी. कुछ अमाउंट यूरिया का रिटेन हो जाता है किडनी के अंदर, किडनी के मैट्रिक्स में ऑफ सम एनिमल्स. वाई? टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, टू मेंटेन द सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन. So, small amount of urea may be retained in the kidney matrix in some animals. Come to next, uricotelism. It is a process of excretion of uric acid from the body. और जो animal uric acid excrete करते हैं they are called as uricotelic animals. कौन से हैं? देखिए, insects, some land crustaceans, land snails, terrestrial reptiles and birds. And what happens? This uric acid is insoluble in water, so water is not required for excretion. तो पूरा conservation होता है water का. So these two mechanisms, ureotelism and uricotelism, are needed for water conservation. अगर animals conserve करना चाहते हैं water को तो ये दोनों mechanism उनमें present होते हैं to excrete the waste material. Okay? Now, other animals में देखिए कौन से excretory organs हैं. फर्स्ट, प्रोटोनेफ्रीडिया और यू कैन से फ्लेम सेल्स. कहाँ होते हैं? कौन से ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? प्लैटीहेलमिंथस, रोटिफोर्स, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स. दे हैव गॉट द फ्लेम सेल्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. दे हेल्प इन ionic and fluid volume regulation in the body of these organisms. Next देखिए nephridia, which is present in annelids. It is also help in removal of nitrogenous waste from the body. Next, Malpighian tubules, which are present in the insects, they remove nitrogenous waste and also help in osmoregulation.
Osmoregulation, I have told you that maintaining the balance of sodium, potassium and water in the body. Then antennal glands, or also called as green glands, are present in crustaceans like prawns. They help in excretion of waste. And next is kidney, which are present in higher animals. Now let us study about the human excretory system. Human excretory system consists of 4 different parts. See the diagram. A pair of kidney, point number 1. A pair of ureters, point number 2. One urinary bladder, and then the urethra. These are the main parts of human excretory system. Now let us see the structure of kidney. डायग्राम देखिए, रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप की स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड इट इज एनक्लोज्ड इन अ टफ 3-layered fibrous capsule. You can see the diagram. ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ये 3 लेयर का बना होता है जिसके अंदर किडनी है. और ये किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. यू कैन सी द लोकेशन. एक पर्सन का फोटो दिखाया गया है यहाँ पर. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ किडनी. लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पर ये प्रेजेंट होती है. इसकी लेंथ देखिए 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. एंड एवरेज वेट इज 120 to 170 grams. Okay, so this is the general features of the kidney. Now see the next. On the concave side of kidney, जो अंदर का साइड है, concave side जो है वहाँ पर एक ओपनिंग है, and this opening is called as hilum. You can see the diagram जो सर्कल किया गया है रेड कलर से. This is the hilum. यहाँ से क्या होता है? Through which blood vessels, nerves, lymphatic ducts and ureter enter the kidney. आप देख सकते हैं renal artery is entering, renal vein is entering and ureter is entering through the hilum into the kidney. Okay. Next देखिए. Hilum then leads to a funnel shaped cavity. जहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है देखिए, ये फनल शेप कैविटी है. इट इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस. तो हीलम यहाँ जाकर ओपन हो जाता है. एंड इस रीनल पेल्विस में क्या है? प्रोजेक्शंस देखिए जो पॉइंट नंबर 2 पर लिखे हुए हैं. मैनी प्रोजेक्शंस आर देयर एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज कैलिक्स और कैलिसेस. क्लियर? पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, लेबलिंग है कैलिक्स. क्लियर? So hilum leads to funnel-shaped cavity called renal pelvis with projections called as calyces. Next देखिए. अब बाहर की साइड पर आइए. A kidney has a outer cortex. जो पिंक कलर का आउटर पार्ट है, जहां पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी. एंड उसके अंदर जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स हैं, दे फॉर्म द मेडुला. सो किडनी हैज 2 मेन पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. अब इनर मेडुला पर आइए, क्या है? मेडुला हैज फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शंस. ये कोनिकल शेप स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 पर लेबलिंग देखिए. दिस इज द पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स एंड दे प्रोजेक्ट इनटू द कैलिसेस. कैलिसेस के अंदर ये प्रोजेक्टेड है. सो 1 देखिए कॉर्टेक्स, सेकेंड देखिए मेडुलरी पिरामिड एंड दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स. ओके. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कॉर्टेक्स कहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है? पॉइंट नंबर 3 पर देखिए. कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स. मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंडेड है कॉर्टेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम्स. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस है सारा, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स. पॉइंट नंबर 1 डायग्राम देखिए. कॉर्टेक्स, देन medullary pyramid, number 2 diagram, then calyx, then renal pelvis and then through hilum opens into the ureter. 1 2 3 4 5. This is the sequence. Okay. Now inside the kidney what is present? Nephrons. Each kidney has nearly 1 million tubular nephrons. कितने सारे नेफ्रॉन्स हैं किडनी के अंदर जो फिल्टर करते हैं ब्लड को. Nephrons are structural and functional units of kidney. सारा काम ही नेफ्रॉन करते हैं किडनी के अंदर. और हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, 1 glomerulus and then the renal tubule. Now let us see what are these. Come to glomerulus. ये डायग्राम देखिए आप. What is glomerulus?
देखिए पहले एक आर्टरी है, रीनल आर्टरी, जो किडनी के अंदर जाती है और किडनी में जाकर ये बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है, एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल. ईच वन एफरेंट आर्टीरियोल एंटर इनटू वन नेफ्रॉन. तो देखिए कितनी सारी एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वहाँ पर. ओके, सो पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है एफरेंट आर्टीरियोल, इट इज कमिंग इनटू द नेफ्रॉन. जब ये नेफ्रॉन के कैप्सूल में एंटर करती है तो क्या होता है, ये बहुत सारी ब्रांचेस बनाती है. सो ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये बहुत सारी कैपिलरीज का टफ्ट है. ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, formed by the afferent arteriole. And then blood from the glomerulus is carried away. ये फिर बाहर आ जाता है blood by efferent arteriole. So this is called as glomerulus. Tuft of capillaries is called as glomerulus. Okay. Now next, renal tubule देखिए किस चीज़ का बना है. The renal tubule begins with the Bowman's capsule. See the diagram. जो ब्लू कलर का कप है, कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल, जहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है. सो द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द बाउमेंस कैप्सूल. ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, कप शेप का होता है और इसके अंदर ग्लोमेरुलस एनक्लोज्ड होता है. क्लियर? एंड दीज टू टुगेदर, बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कॉल्ड एज मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल. क्लियर? सी द स्ट्रक्चर क्लियरली, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. फर्दर इसके बाद क्या होता है, द ट्यूब्यूल कॉन्टिन्यूज विद. आप ये डायग्राम देखिए फिर से, बाउमेंस कैप्सूल से निकल रहा है ट्यूब्यूल. आगे देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये, प्रॉक्सिमल टू बाउमेंस कैप्सूल. प्रॉक्सिमल मीन्स नियर टू बाउमेंस कैप्सूल है, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स घुमावदार. सो इट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन एक यू शेप का स्ट्रक्चर आ रहा है उसके बाद, इट इज कॉल्ड एज हैंडलेज लूप. हैंडलेज लूप के 2 पार्ट हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 जहां लिखा हुआ है, और एक ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब. सो डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब दे फॉर्म हैंडलेज लूप. एंड आफ्टर हैंडलेज लूप देखिए क्या है, अगैन देयर इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT जहां लिखा हुआ है, डिस्टल टू बाउमेंस कैप्सूल. बाउमेंस कैप्सूल से दूर है ये, और कॉन्वोल्यूटेड मीन्स घुमावदार. सो इट इज अगैन अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सो देयर इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैंडलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट हियर. ओके, एंड देन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट. पॉइंट नंबर 5 पर देखिए. क्लियर? So these are the various parts of the renal tubule, starting from the Bowman's capsule, ending into the collecting duct. Clear? Now, the distal convoluted tubule of many nephrons. See the diagram number 1. बहुत सारे nephrons के distal convoluted tubule एक common collecting duct में इकट्ठा हो जाते हैं. ब्लू कलर की कलेक्टिंग डक्ट है और ग्रीन कलर के आपको जो दिखाए गए हैं वो डिफरेंट नेफ्रॉन्स हैं, उनकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर ओपनिंग इनटू कलेक्टिंग डक्ट. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ चली जाती है. कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला. डायग्राम नंबर 3 देखिए, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जा रही है, मेडुला में चली जाती है. एंड दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू, ये फिर देन इट ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस, पासिंग थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स एंड कैलिसिस. मेडुलरी पिरामिड्स और कैलिसिस से होती हुई ये रीनल पेल्विस में एंटर कर जाती है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल. डायग्राम नंबर 3 देखिए, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, मेल्फिजियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीनों चीज़ें रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हैं. एंड लूप ऑफ हैंडले इज प्रेजेंट इन मेडुला. Clear? The structure of this is clear to you. Now come to next. अब आते हैं ब्लड वेसल्स किस तरह से चारों तरफ इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ होती हैं. इफरेंट आर्टीरियोल निकल चुकी है बाउमेंस कैप्सूल से. ओके, द इफरेंट आर्टीरियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल. ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये चारों तरफ ट्यूब्यूल के एक नेटवर्क बना देती हैं कैपिलरीज का. पॉइंट नंबर 1 देखिए,
दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जो रेड कलर की कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ ट्यूब्यूल के, दे फॉर्म द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ओके अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। और नीचे की तरफ आइए, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आइए डायग्राम में। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हैंडलेस लूप। जो हैंडलेस लूप के पैरेलल जा रही हैं ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज वेसा रेक्टा। क्लियर? दिस इज हाउ द ब्लड वेसल्स कवर द ट्यूब्यूल। ओके, नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। डायग्राम देखिए, वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो 85% हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसमें जो लूप ऑफ हैंडले है बहुत छोटा होता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में। इन दिस द हैंडलेस लूप इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली टू वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। बहुत थोड़ा सा ही मेडुला में जाता है। और इसमें जो वेसा रेक्टा होता है इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। इसके चारों तरफ ब्लड वेसल नहीं हो पाती क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। सेकेंड आइए, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, पॉइंट नंबर 2 जहां लेबलिंग किया गया है, ये 15% होते हैं। इन दिस हैंडलेस लूप बहुत लंबा होता है, दिख रहे हैं, एंड एक्सटेंड करता है मेडुला तक। और वेसा रेक्टा इज प्रेजेंट इन दिस। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी। Now let us see the process of urine formation, how the urine is formed. 3 steps होते हैं urine formation के. First, glomerular filtration, then reabsorption, third, tubular secretion. Okay, now let us see glomerular filtration. ये first step होता है urine formation का. So first step in urine formation is glomerular filtration. Come to point number 2. देखिए क्या लिखा है. On an average, 1100 to 1200 ml of blood filtered by kidney per minute. 1 मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है किडनी से. और टोटल ब्लड निकलता कितना है वेंट्रिकल से पर मिनट? इट इज 5000. सो इट इज 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. 1100 to 1200 ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. ओके, और ये होता कैसे है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. और फिल्ट्रेशन होता है 3 लेयर्स से. कौन कौन सी 3 लेयर्स से ब्लड पास करता है फिल्टर होने के बाद? एंडोथीलियम, जो ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, पॉइंट नंबर ए देखिए. बी, देन एपिथीलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 layers. Okay, now see the structure of epithelial cells. बहुत important, बहुत peculiar structure होता है. Epithelial cells are also called as podocytes of the Bowman's capsule. ये किस तरह से arrange होते हैं? Epithelial cells of the Bowman's capsule are arranged in an intricate manner. देखिए डायग्राम देख सकते हो आप किस तरह से ये अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, बट दे आर लिविंग सम माइन्यूट स्पेसेस, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस बीच में छूटी हुई हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज filtration slits or slit pores. This help in the filtration of blood. Okay, next, blood is filtered so finely. इतना फाइन फिल्ट्रेशन होता है कि ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़कर बाकी सब कुछ फिल्टर हो जाता है इनटू द ल्यूमन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल. आप डायग्राम में देख सकते हो, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर सारा ब्लड फिल्टर होकर आ रहा है एक्सेप्ट प्रोटीन. So this type of filtration is called as ultrafiltration. Okay, the amount of glomerular filtrate formed per minute is called as glomerular filtration rate. 1 मिनट में कितना फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर से? इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और ये कितना है? नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू 125 मिलीलीटर पर मिनट. इट मीन्स 180 लीटर्स पर डे. क्या ये सारा बाहर निकलता है एज अ यूरिन? नो. 180 liters of glomerular filtrate is produced daily, but 99% of this is reabsorbed by renal tubules. कितने इंपॉर्टेंट है renal tubules का रोल? कितना सारा मटेरियल को रीअब्जॉर्ब करना है. दिस इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर फिल्ट्रेशन.
So normal volume of urine released is only 1.5 liters. From the filtrate, जो फिल्टर होकर निकला है बाउमन्स कैप्सूल में जो आ चुका है मटेरियल, उसमें से क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सोडियम, दे आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली. बिल्कुल कोई भी चीज़ को बाहर निकलने नहीं देंगे हम. इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा चाहे हमको एनर्जी का यूज़ क्यों ना करना पड़े. एक्टिवली मीन्स वी आर यूजिंग एनर्जी टू एब्जॉर्ब दिस. सो फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सोडियम आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं पैसिवली, लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली. जो चारों तरफ भी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है पैसिवली. ओके, एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन. शुरुआत के जो नेफ्रॉन है, स्टार्टिंग में जो नेफ्रॉन है, जो यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है पैसिवली. ओके, सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आ जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट, ट्यूबुलर सिक्रीशन. जो ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स हैं, दे ट्राई टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस. सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बनाए रखना है, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना है, पीएच को मेंटेन रखना है और बॉडी फ्लूइड्स. फॉर दैट दे selectively secrete hydrogen, potassium and ammonium into the filtrate और वहाँ से absorb कर लेते हैं bicarbonate from there. So these are the three main steps for the formation of urine. And in the next video, we'll see the role of tubules in the reabsorption. So thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so